Hello class, welcome to my YouTube channel RR Online English Classes for UGC NET. So students, today we are going to discuss a tragic comedy of Shakespeare, Merchant of Venice. Let's have some key facts. The Merchant of Venice, author William Shakespeare, and genre tragic comedy, and sometimes called a problem play. Written around 1596 and 1598, first performance 1596 and 1597, first printed 1600 quarto edition, and setting of the play in very first in Venice, then in Belmont, and again in Venice. Themes of the play: justice and mercy. The play contrasts the harshness of law and strict justice, Shylock's bond, with the idol of mercy, Portia's courtroom plea. The outcome questions whether justice serves humanity or power. Prejudice and intolerance. The treatment of Shylock exposes anti Semitism and the dehumanization of outsiders in Venetian society. Money and wealth, trade, loan, and pursuit of fortune drive the plot and relationship. Love and loyalty, romantic love, Bassanio with Portia, friendship, Antonio with Bassanio, and family bonds are central, often tested against material and social pressures. Revenge versus forgiveness. Shylock's pursuit of vengeance for personal and societal injuries as contrasted with the Christian idol of forgiveness. So these are the themes: appearance versus reality. Symbols: three cascade, in which gold symbolizes wealth and outward show, silver symbolizes status and pride, and lead humility, sacrifice, and true love. These are the symbols. The pound of flesh, the symbol of strict justice without mercy, represent revenge, cruelty, and danger of rigid law. Also shows Antonio's extreme friendship and self-sacrifice. The rings, symbol of love, loyalty, and trust. Motifs in the play which are recurrent in the play. Motifs which repeatedly appears in the play: law and justice versus mercy, friendship and loyalty, disguise and deception, Portia and Nerissa, disguise as man, lawyer, and clerk, Lorenzo and Jessica elope in disguise, appearance versus reality in casket test. Revenge versus forgiveness, Shylock's revenge against Antonio versus Portia's appeal for mercy. Risk and adventure, Antonio's ships at sea, Bassanio's risky choice of casket, and Jessica's escape, Antonio's life in danger. Religion and prejudice, Christian versus Jew conflict run throughout the play. Shylock's hat, not a Jew, which emphasizes this motive. Let's look at let's look have a look on the characters. Antonio, and Antonio has best friend, और एंटोनियो को जो बेस्ट फ्रेंड है वो है Bassanio, and Bassanio loves Portia, and Portia saves the life of Antonio when Shylock sues Antonio. Shylock has a daughter, Shylock की एक बेटी है, उसका नाम है ये जेसिका, जो अपने फादर को धोखा देकर और अपने फादर का
कि जो है ये ज्वेलरी है वो सब चुराकर भाग जाती है लोरेंजो के साथ। Portia has a maidservant and her friend and her confidant Nerissa, who loves Gratiano, who is the best friend of Bassanio. So these are the important characters of the play. Let's have a look on the play. तो नाटक की शुरुआत वेनिस शहर से होती है, जहां एंटोनियो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत उदास दिखाई देता है। सिलेरियो और सोलानियो उससे पूछते हैं कि वह इतना परेशान क्यों है। वे सोचते हैं कि शायद एंटोनियो इसलिए इसलिए परेशान है क्योंकि उसके जो शिप्स है वो समुद्र में फंसे हुए हैं। लेकिन एंटोनियो कहता है कि उसकी उदासी का तो कारण वह खुद भी नहीं जानता है। इतने में एंटोनियो का जो फास्ट फ्रेंड है बेटोनियो, वो वहां पे आ जाता है और वह ये बताता है कि वह एक बेलमोंट की एक अमीर एक लड़की से वो प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है, और उस लड़की का नाम है पोर्शिया। लेकिन पोर्शिया की शादी उसके पिता की वसीयत के अनुसार होने वाली है, और वो जो वसीयत है वो कुछ इस प्रकार से है कि उसके पिता ने वो जब उन्होंने अंतिम सांस ये ली थी तो उन्होंने 3 कास्केट को रखा हुआ था और ये कहा था कि जो व्यक्ति इन कास्केट में से सही कास्केट को ये चुनेगा, सही कास्केट का यहाँ पे अर्थ है कि उन 3 कास्केट में से एक कास्केट के अंदर एक संदूकड़ी के अंदर पोर्शिया की एक फोटो रखी हुई है। तो जो भी व्यक्ति उन 3 कास्केट में से सही कास्केट को वो चुनेगा, वही पोर्शिया से शादी करेगा। लेकिन बेसोनियो के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पोर्शिया के स्वयंवर में वो जा सके। लेकिन एंटोनियो ये कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो किसी और से कर्ज लेकर बेसोनियो की मदद करेगा। इसके बाद एंटोनियो और बेसोनियो कर्ज लेने के लिए शाइलॉक के पास जाते हैं, जो एक ज्यू है। ज्यू करते कि वो एक यहूदी मनी लैंडर है, वो एक यहूदी साहूकार है। शाइलॉक मन ही मन एंटोनियो से बहुत नफरत करता था, क्योंकि एंटोनियो ईसाई है, और कई बार शाइलॉक को एंटोनियो ने ब्याज खोर कह कह कर अपमानित भी किया है। तो आज शाइलॉक के पास वो मौका आ गया है कि वो एंटोनियो से अपना बदला ले ले। फिर भी शाइलॉक उन्हें 3000 डुकेट्स वो देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह एक अनोखी शर्त रखता है। शर्त क्या है? यदि एंटोनियो समय पर पैसा नहीं लौटा पाया तो शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काट देगा। एंटोनियो इस शर्त पर हंसकर हामी भर लेता है, क्योंकि उसे अपने जहाजों के लौटने का पूरा पूरा ये भरोसा है। अब 3000 रुपए जो शाइलॉक है वो ये दे देता है। अब इतने में जो ये बेलमोंट में जो पोर्शिया है वो बेसोनियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, और उसके साथ उसकी एक कॉन्फिडेंट है, उसका नाम है नेरिसा। उसके पास कई वर आते हैं, लेकिन सभी को परीक्षा से यानी कि सभी लोगों को उसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एक दिन प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं और वो सोने की कास्केट को वो चुनते हैं, और उसमें लेकिन उसमें पोर्शिया की तस्वीर नहीं होती है, उसमें एक स्कल एक खोपड़ी की तस्वीर होती है, और उसमें एक मैसेज भी लिखा होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
कि हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। उसके एक दो कुछ दिनों के बाद प्रिंस ऑफ एरागोन आते हैं और वो चांदी की कास्केट को चुनते हैं। उसमें लिखा होता है हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। तो वो भी असफल हो जाता है क्योंकि उसमें वो एक ब्लिंकिंग इडियट की पिक्चर को वो पाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बेसोनियो आता है और वो ध्यान से सोचता है कि वह भड़कीले सोने और चमकदार चांदी को छोड़कर साधारण लेड कास्केट को वो चुनता है। उसमें पोर्शिया का चित्र निकलता है। पोर्शिया बेसोनियो से प्रसन्न हो जाती है और दोनों का विवाह हो जाता है। लेकिन बेसोनियो का मित्र जिसका नाम जो है ये ग्रेटियानो है, वो पोर्शिया की मेड सर्वेंट नेरिसा से वो प्रेम करता है और दोनों ही उसी समय विवाह बंधन में वो बंधने का फैसला ये करते हैं। इसी बीच वेनिस में शाइलॉक की जो ये बेटी होती है, उसकी बेटी का नाम है ये जेसिका। वो लोरेंजो नामक एक ईसाई युवक के साथ भाग जाती है रात को चुपके से, और वो अपने घर से अपने फादर के हीरे जेवरात जो भी ज्वेलरी है वो सब चुरा के ले जाती है। शाइलॉक को जब यह पता चलता है तो उसका गुस्सा वो जो है कि बदला लेने की भावना से और बहुत ज्यादा वो ये क्रुद्ध हो जाता है। वो ये सोचता है कि इन सब के पीछे भी एंटोनियो और बेसोनियो का ही हाथ है। अब वो अपना पक्का मन बना लेता है कि वो अब अगर एंटोनियो ने पैसा नहीं चुकाया तो वो केस वेनिस के ड्यूक की अदालत में जरूर ले जाएगा। अचानक खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज समुद्र में डूब गए हैं। एंटोनियो कर चुकाने में असमर्थ हो जाता है। शाइलॉक अदालत में ये दावा करता है कि वो एंटोनियो से उसका 1 पाउंड फ्लैश चाहता है। एंटोनियो को कैद कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। एंटोनियो की हालत को जानकर बेसोनियो एकदम तुरंत वेनिस लौट आता है ये बेलमोंट से, और जो ये पोर्शिया है जो उसकी ये पत्नी है वो अपने प्रेमी बेसोनियो के दोस्त को बचाने का पक्का जो है वो इरादा वो करती है, और वह खुद एक युवा एक नौजवान वकील के रूप में बैल्थेजर के रूप में अपना भेष बदलकर वो वेनिस आ जाती है। उसके साथ नेरिसा भी होती है जो उसके क्लर्क के रूप में आती है। वेनिस के ड्यूक की अदालत में शाइलॉक अपने बॉन्ड की मांग करता है। बेसोनियो उसको 2 गुना पैसा वो देने की पेशकश करता है, लेकिन शाइलॉक इनकार कर देता है, नहीं कि अब टाइम हो गया है, अब मैं एंटोनियो की बॉडी से मांस मांस यानी कि जो है फ्लैश मैं वो निकालूंगा। लेकिन जो पोर्शिया है जो वकील के वो जो है कि भेष में आई है, जो एक मेल बन के जो एक आदमी बन के आई है, पोर्शिया ये कहती है तो जो ये तो जो ये पोर्श तो जो ये पोर्शिया है वो पहले मर्सी के ऊपर थोड़ा सा वो लेक्चर देती है वो शाइलॉक को। वो कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, यानी कि दया किसी जबरदस्ती से किसी के मन में पैदा नहीं की जा सकती है। लेकिन शाइलॉक दया दिखाने से इनकार कर देता है। तब पोर्शिया कानून की बारीकी बताती है। वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश यानी कि ऑलमोस्ट 450 ग्राम हो सकता है कि तुम वो मांस निकाल सकते हो, लेकिन याद रहे कि वो मांस केवल 1 पाउंड ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। और
और एंटोनियो की बॉडी से एक बूंद खून भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड में केवल मांस की बात कही गई थी, फ्लैश की बात की गई थी, खून की बात नहीं की गई थी। तो इस तो पोर्शिया की यानी कि बाल्थेजर की बात, यानी कि जो ये पोर्शिया है वो एक मेल वकील के वो ये भेष में है। वो कहती है कि तो ये सारी जब वो दलील वो देती है, तो उसके बाद वो सब ये दलीलें सुनने के बाद अदालत अपना फैसला वो सुनाती है। शाइलोक की आधी संपत्ति एंटोनियो और लेरेंजो को मिलेगी और उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। शाइलोक टूटा और अपमानित होकर अदालत छोड़कर चला जाता है। इतने में अदालत से लौटते समय पैसोनियो और ग्रेटियानो उस वकील, यानी कि जो इस समय जो ये पोर्शिया है, पोर्शिया की जो भेष में, मतलब कि जो जो ये पोर्शिया है और जो उसने एक एक इन, एक एक मेल बैरिस्टर का जो उसने रूप धारण किए हुए है, तो तो वो बेसोनियो से अपनी फीस मांगती है। लेकिन जो बेसोनियो है वो कहता है कि मैं तुम्हें फिलहाल फीस तो नहीं दे पाऊंगा। तो जो बेसोनियो होता है वो कहता है कि मेरे पास फिलहाल इतने पैसे तो नहीं है। तो जो बेसोनियो है, तो सॉरी, जो ये पोर्शिया है वो बेसोनियो से उसकी उंगली में जो अंगूठी थी वो अंगूठी मांगती है। हालांकि इस बात के लिए जो बेसोनियो है वो राजी नहीं होते, लेकिन वो फिर भी हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे जो है वो मन से उस वकील को, यानी कि पोर्शिया को, वो अंगूठी दे देता है। और जब नेक्स्ट डे बेसोनियो बेलमोंट पहुंचता है, तो जो पोर्शिया होती है वो उस अंगूठी की वो डिमांड करती है, जो उसने शादी में अपने ज्ञान से अपने हस्बैंड को दी थी। लेकिन जो बेसोनियो होता है वो अंगूठी को दे नहीं पाता है। तो इतने में जो पोर्शिया है वो उसी अंगूठी को बेसोनियो को वो जो है तो वो देती है उसको, क्योंकि वो बेसोनियो का मजाक बनाना चाहती है, मतलब कि वो केवल बस बेसोनियो से हंसी मजाक के लिए कर रही है। इतने में जब सब ठीक हो जाता है, तो अब जो ये पोर्शिया है वो सारा राज खोल देती है बेसोनियो के सामने, और तीनों जोड़े वहां पे मिल जाते हैं। बेसोनियो, पोर्शिया, ग्रेचियानो, नेरिसा और लोरेंजो एंड जेसिका। तो ये कहानी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन द फेमस डायलॉग ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives him that takes. ये जो लाइन है वो पोर्शिया बोलती है जब वह एंटोनियो का केस वेनिस के ड्यूक के अदालत में लड़ रही होती है। वो कहती है कि मर्सी इज नेचुरल, डिवाइन एंड बेनिफिट्स बोथ गिवर एंड रिसीवर। इट स्टैंड्स अबव ह्यूमन जस्टिस, स्पेशली इन द पाइवोटल कोर्टरूम सीन। ये पोएम आपने 12th में जरूर पढ़ी होगी। If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? ये लाइन शाइलॉक बोलता है, stresses the shared humanity between Jews and Christians against discrimination and for universal empathy। क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि वो एक यहूदी है और यहूदियों के साथ वेनिस में ये जो है
कि जो ये सब क्रिश्चियंस है इनके द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, इसलिए वो ये लाइन ये बोलता है। आई एम ए Jew hath not a Jew eyes, hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses and affections. Meaning continues the argument for Shylocks and minorities dignity in the face of bigotry. क्या वो ये कह रहा है कि देखो हम भी तो आदमी हैं, कि ये भले ही हमारा जो ये धर्म है वो अलग है, लेकिन हमारे भी 2 हाथ, हमारे भी 2 आँखें हैं, हमारे भी बिल्कुल जो जो आपके हैं वही हमारे हैं। तो इसलिए वो अपना वो बचाव कर रहा है और जो धार्मिक जो ये कट्टरपंथी है उसके वो खिलाफ बोल रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये वो मैसेज है जो उस कास्केट में था, जो लीड कास्केट में, सॉरी, जो जो ये गोल्ड कास्केट में था। हैथ नॉट ए जूज आईज, हैथ नॉट ए जू हैंड्स, ऑर्गन, ये तो वही आ गया। One half of me is yours, the other half is yours, mine own, I would say, but if mine then yours, and so all yours, shows Portia's devotion and the merging of identities in love. ये जो पोर्शिया है वो अपने प्रेम को इस लाइन के माध्यम से बेसोनियो को एक्सप्रेस कर रही है। लव इज ब्लाइंड, बिल्कुल सेम फीलिंग इस कोटेशन में भी है। लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द pretty follies and themselves commit. सॉरी, ये लाइन बोल रही है ये जेसिका, डॉटर ऑफ Shylock. Suggest love's irrational nature and its power to conceal flaws. I hold the world, but as the world, Gratiano as a stage where every man must play a part, and mine is sad one, Antonio. ये बोलता है एंटोनियो क्योंकि वो हमेशा उदास रहता है। The villainy you teach me I will execute, and it shall go hard, but I will batter the instruction. It means Shylock reveals how he has learned cruelty from Christians, confronting them about the cycle of revenge. If to do were easy to do, know what were to do. Chapels had been churches and poor man's cottage princes' palaces. तो यहाँ पे जो पोर्शिया है वो कोर्ट में ये दलील दे रही है कि इफ टू डू वर एज इजी, अगर करना इतना आसान होता जितना कि ये सब की जानना होता है, व्हाट वर टू डू, तो फिर बात ही क्या है। तो अगर ऐसा होता फिर तो जो छोटे छोटे जो ये चैपल्स हैं, जो ये चर्च हैं, वो अब तक चर्च बन गए होते, एंड द पुअर मैन्स कॉटेज प्रिंसेस पैलेसेस, और जो ये गरीब लोगों की जो ये झोपड़ियां हैं वो राजकुमारों की महल बन गए होते। तो देयर इज ऑफन गैप बिटवीन नोइंग एंड एक्टिंग, तो कहने में और ये सोचने में और ये करने में बहुत अंतर होता है। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड, philosophical musing about the origin of love, questioning logic versus emotion in the romantic attraction. यहाँ पे वो ये एक दलील वो दे रही है कि लॉजिकली सोचने में और इमोशंस के सोचने में बहुत अंतर होता है। The pound of flesh which I demand of him is dearly brought, it is mine and I will have it. ये बोलता है शाइलोक कि वो एंटोनियो की बॉडी से मांस लेकर ही झटेगा। The bond doth give here me lot of blood. The word expressly are a pound of flesh. ग्रेटियानो ये बोलता है ए डैनियल कम टू जजमेंट, ये ए डैनियल। तो इस लाइन में जो ये फ्रेंड है बेसोनियो का, ग्रेटियानो, वो तारीफ करता है पोर्शिया की, उसकी ये जो है तो ये बुद्धि के लिए, और वो उसकी जो कंपैरिजन है वो डैनियल से करता है। डैनियल कौन है? ये जो है कि बाइबल का एक फेमस चरित्र है, कैरेक्टर है, बेसोनियो। So may the outward shows be least themselves, the world is still deceived with ornament. बेसोनियो ये बात जो है तो ये बोलता है,
Bassanio rejects appearance, gold, silver, and chooses the plain lead casket, proving he values inner worth over outward show. वो अंदर की खूबसूरती को ज्यादा स्ट्रेस देता है, जोर देता है. A goodly apple rotten at the heart, or what a goodly outside falsehood hath Antonio. Critic, deceptive appearance equating an attractive exterior with moral corruption. Now look at the important questions. What do the three casket, gold, silver, and lead casket symbolizes in the play? Superficiality, pride, and humility. Superficiality, pride, and humility. Pound of flesh demanded by Shylock is an example of symbolism. Which character, a famous speech, if you prick us, do we not bleed, use parallelism to the express shared humanity. Shylock बोलता है. What is the main function of Valmont as setting in the play? A fantastical realism of romance and dreams. तो बेलमोंट की जो सेटिंग है वो इस चीज का एक सिंबल है, फैंटास्टिकल रियल्म ऑफ रोमांस एंड ड्रीम्स, कल्पना का. लॉस ऑफ एंटोनियो शिप्स इज बेस्ट इंटरप्टेड एज फॉर्म ऑफ foreshadowing. Which character is central to the theme of mercy versus justice in the play? Portia. What motivates Shylock to demand pound of flesh as the penalty of default? Hatred for Antonio. What does Portia's disguise as Balthazar reveal about her character? Her intelligence and capability beyond traditional gender. Why does Jessica elope with Lorenzo? Because to escape her father's strict control and convert to Christianity. क्योंकि वो अपने फादर के स्ट्रिक्ट कंट्रोल से परेशान आ गई थी और वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना चाहती. How is the relationship between Venice and Belmont symbolically contrasted? Venice represents commerce, conflict, while Belmont represents harmony and romance. Pound of flesh symbolizes the danger of strict law without compassion. In the trial scene, Shakespeare raises the question of mercy versus justice. What does Gratiano's exclamation, "A Daniel come to judgment," Portia is wise and as biblical judge Daniel. तो इस लाइन में ग्रेटियानो ने पोर्शिया की जो कंपैरिजन है वो डैनियल से की है. In the trial scene, Shakespeare raises the question of mercy versus justice. आज इतना ही. ये था हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप और कौन सी वीडियोस, किस प्ले की वीडियोस और देखना चाहते हैं. बाय बाय, साइनिंग ऑफ.